ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੰਝ ਮਨਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੰਝ ਮਨਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। 40 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, 40 ਦਿਨ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। 40 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਝੱਖੜ ਵੀ ਝੁੱਲੇ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਉਟਣਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। 40 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਨੇਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।
गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का, बाबा दीप सिंह साहिब जी का संगत रूपी परिवार डेरा संत बाबा थारिया सिंह जी उल्लासनगर 3 में एकत्रित हुआ और हो रहा है। सारे परिवारक मेंबरों को आज की पारिवारिक मीटिंग में मैं जी आया बोलता हूँ। आओ कीर्तन की प्रारंभता बड़े प्यार के साथ 8-10 मिनट वाहिगुरु गुरुमंत्र के जाप के साथ जुड़ के करो। जिधर जिधर भी जगह मिले कृपा करके सजने की कृपालता करना और ऐसी तगड़ी भावना बना के बैठो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में आप हाजर नाजर गुरु रामदास जी बैठे हैं। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। तो जहाँ गुरु रामदास जी, उनके चरणों में बाबा दीप सिंह साहिब भी बैठे हैं। तो आओ बड़े प्यार के साथ प्रारंभता करें। और जो संगत के प्रेमी इस वक्त हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक शेयर करो। 10-10, 15-15 जनों को, 20-20 जनों को ये लिंक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप भी घरों में जाके ये दोबारा सारा प्रोग्राम भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल पे देख सकते हो। आओ जी, करो कृपा, कोई रास्ता खाली ना रहे। थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाओ, साथ साथ हो जाओ, बेनती मानो, थोड़ा थोड़ा साथ साथ हो जाओ, ताकि जो बाद में संगत आएगी उनको पीछे फिर बैठने की जगह मिलती जाएगी, आगे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आओ जी, बड़े प्यार के साथ जुड़ो। वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु जपो सारे जुड़ जाओ प्यारे हो। वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु बाबा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप आद सच जुड़ जाओ सच नानक होसे भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप आद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार
नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूने गुर प्रसाद जप आद सच है पी सच नानक होसे सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूने गुर प्रसाद जप आद सच करो कृपा है भी सच नानक होसे भी सच। धन गुरु रामदास जी मैं तेरा गुरु रामदास जी मैं तेरा धन गुरु रामदास जी मैं तेरा गुरु रामदास जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा। धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा सारे मैं तेरा तू मेरा धन गुरु रामदास जी मैं तेरा गुरु रामदास जी मैं तेरा धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा वाहिगुरु वाहिगुरु सारे वाहिगुरु 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 सब जुड़ जाओ वाहिगुरु 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 सबकी आवाज आवे प्यारे सारे वाहिगुरु 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 श्वासों की प्रक्रिया को महसूस करो गुरु वाहिगुरु 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 और जोर लगाओ गुरु वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु जपो जी वाहिगुरु
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा। दीप सिंह जी। शब्द पढ़ने से पहले जो मैं 2-3 जरूरी बिनतियां करता हूं वो करेंगे, सदगुरु सेवा लें। उससे पहले एक वचन मानो, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है या तो बंद कर दियो या साइलेंट मोड पे कर दियो। किसी ने भी संगत में बैठ के व्हाट्सएप, फेसबुक ये चीज़ें नहीं चलानी। बस जो काम हम करने आए हैं वो काम करें। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। ये वचन मानो, बिल्कुल सारी संगत अपने अपने फोन बंद कर लो। आओ जी, जो मैं विनती कर रहा हूं ध्यान से सुने। और शस्त्र है ना, शस्त्र हथियार, शस्त्र, शस्त्रों के साथ केवल शरीर घायल होता है। घायल शस्त्र शरीर को घायल कर सकते हैं, परंतु शब्द जो हैं वो आत्मा को घायल कर देते हैं। आखो वाहिगुरु जी। शब्द आत्मा को घायल करते हैं, इसलिए ये महापुरुषों के वचन हैं। प्यारेया, कोशिश कर अच्छा बोल, अच्छा सुन और अच्छा व्यवहार कर। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। क्योंकि हथियार जो शस्त्र हैं वो घायल कर सकते हैं केवल शरीर को, मगर तेरी जुबान से निकले हुए शब्द सामने वाले की आत्मा को भी घायल करके रख देते हैं। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा ऐसे बोल बोलो जिन बोलों को सुनने के बाद सामने वाले का हृदय गुरु के चरणों के साथ जुड़ जावे। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा। दीप सिंह जी। कभी भी ऐसे शब्द ना बोलो जिससे सामने वाले का हृदय टूटे। शब्द ही है, शब्दों के साथ पड़ी हुई प्रीत टूट भी जाती है, और शब्दों के साथ टूटी हुई जो प्रीत है दोबारा से जुड़ भी सकती है। शब्द ही बोले ना दो मीठे जुबान से, दो मीठे शब्द बोलने से प्यारेया नफरत की दीवारें गिर सकती हैं। और अगर शब्द खराब बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, तो नफरत की दीवारें खड़ी हो सकती हैं। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा। दीप सिंह। देखो, इंसान तो 2.5-3 साल में बोलना सीख जाता है, सच्ची बात है, मगर कब क्या बोलना है, कहाँ क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पे कौन सी वर्डिंग यूज करनी है, कहाँ पे क्या बोलना है, ये सीखते हुए कई बारी सारी उम्र लग जाती है। हैं जी। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा। दीप सिंह जी। धन बाबा। दीप सिंह जी। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा व्यवहार करो। अगली बात ध्यान से सुनो। शमशान की राख देख के मन में एक ख्याल आया। शमशान घाट में जब राख देखी तो एक ख्याल आया मन में, पता कौन सा? शमशान की राख देख के मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी में दूसरों के साथ कितनी बारी अंदर जलन रखता है। देखो, सफर तो वहीं पे जाके खत्म होएगा ना। शमशान की राख को देखकर एक दिन मन में ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान सारी जिंदगी कितनी बार दूसरों के प्रति अपने अंदर आग जला के सड़ता है, जलता है। मेरी विनती, अगर हम संगत करते हैं ना तो किसी की चढ़त को देख के जलो मत। हैं जी, किसी की चढ़त को देख के चलो मत। अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, एक पाठ जपजी साहब करके, एक पाठ चौपाई साहब करके रोज ओदी चढ़दी कला दी अरदास करो गरीब नवाज, उसको और बढ़ा और उसके पैरों के पीछे मेरी भी झोली भर दे।
ये अकेला पढ़ना थोड़ी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ सारे बोलो तेरे भाणे, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ फिर बोलो तेरे भाणे। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ये अकेला पढ़ना नहीं, इसको कमाना भी है। कोई आगे बढ़ता है ना, उसको देख के और प्रसन्न हो, प्रसन्न। मैं गुरु की हजूरी में ये बात बोल रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे कीर्तनी अपनी लाइफ में देखे हैं। सुबह दरबार साहिब का जब कीर्तन आता है ना पीटीसी पंजाबी पे, उसके बाद कथा चलती, बाद में ना कई कीर्तनियों की शब्दों की नई एल्बम आई होती, उसकी ऐड आती है टीवी पे। मैंने कई कीर्तनी अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं, जब किसी नए रागी की, नए कीर्तनीय की ऐड आवे ना, उसको जानते नहीं वो, मगर बाबा दीप सिंह जी के स्थान पे जाके हाथ जोड़ के अरदास करते हैं, बाबा तेरी फुलवाड़ी का एक फूल और बढ़ गया है, कृपा करना ये सुगंधी देने वाला बने, इन्हू होर चढ़दी कला बख्शो। इससे होता पता क्या है, जो ये अरदास करता है ना गुरु बाबा, उसकी चढ़दी कला खुद ब खुद करी जाता है। ये ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। किसी की बढ़त को देख के जलो ना कि भाई हाय वो इस मुकाम पे कैसे पहुंच गया, उसने ऐसा कैसे मुकाम हासिल कर लिया। जो उसके अंदर गुण मौजूद हैं, वो गुणों को अपने अंदर लेके आने का यत्न करें, ना कि उससे ईर्खा करें। आखो धन गुरु रामदास जी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। प्यार न लखो न जी, धन बाबा, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। अगली बात जो मैंने बीच में थोड़ा सा इशारा दे दिया था, कौन सी बात कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन सी बात कैसे करनी है, कब करनी है, किस ढंग से, किस तरीके से करनी है। जिसको ये सलीका आ गया, उसका जिंदगी का सफर आसान हो जाता है, आसान। ये सीखो, ये मेरी विनती है, जरूर सीखो। और ये सीखता वही है जो गुरु की संगत करता है। आखो धन गुरु रामदास जी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। प्यार न लखो न जी, धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, फिर आखो धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ये मेरी विनती है, ये सलीका गुरु की संगत सिखाएगी। गुरु की संगत में आके ये गुण झोली में पड़ेंगे। मैंने काफी साल पहले ये वचन सुनाया था, कईयों को याद होगा, हो सकता है कईयों को भूल गया हो। वैसे तो मेरी कोशिश होती हर कीर्तन में मैं कुछ ना कुछ नया जरूर आपकी झोली में डालूं, क्योंकि जब मैं आपको कुछ नया सिखाता हूं तो मैं भी सीखता हूं। आखो धन गुरु रामदास जी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। इदा नहीं, उची बोलो धन गुरु रामदास जी। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। प्यार न लखो न जी, धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। काफी टाइम पहले ये मैंने वचन सुनाया था, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, जब उनकी बच्ची बीबी भानी जी का आनंद कारज था ना गुरु रामदास जी के साथ, भाई जेठा जी के साथ, तो गुरु अमरदास जी ने 3 अक्षर झोली में डाल दिए थे, 3 पब्बे। भा अक्षर होता है ना, भा, हम पंजाबी में पब्बा बोलते हैं, आप भा बोलते हो। कहते भानी पुत्र मायके घर से ससुराल जा रही है, जब भी कोई बाप अपनी लड़की को ससुराल के लिए रवाना करता है, कुछ ना कुछ देता जरूर है। आज मैंने भी तुझे कुछ देना है। गुरु पिता क्या देना चाहते? कहते आज अपने साथ 3 पब्बे ले जा, 3 भा अक्षर ले जा। जी वो कौन से? कहते पहला पब्बा, पब्बा भुल गई जी। आखो वाहिगुरु जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। पहला पब्बा, पब्बा भुल गई जी। अब किसी बड़े बुजुर्ग ने घर में ये बात बोल दी, भाई तेरे से ये गलती हुई है, सुने हो, मान लो नहीं भी हुई, गलती नहीं हुई, उसको गलती लग गई, गलती से ये बात बोल दी, तूने ये गलती की है। उस वक्त बहस का विषय ना बनाओ। कई बारी पेरेंट्स भी बच्चों को कह देते ना, ये तूने गलत काम किया है, नहीं करना, किया नहीं, भुलेखा ही लगा चाहे, मगर कई बारी बच्चे फिर आगे से बहस करते, कलेश बढ़ता ही जाता है। सुने हो, कहते ये पहला पब्बा, पब्बा भुल गई जी,
अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने ये बात बोल दी ना, तेरे से गलती हुई, अगर नहीं भी हुई ना, बहस का विषय ना बना, उसी वक्त हाथ जोड़ और कह दे पब्बा भुल गई जी। है जी, पब्बा भुल गई जी, सारे बोलो पब्बा भुल गई जी, पब्बा। भुल गई जी, नहीं इदा नहीं, उच्ची बोलो पब्बा भुल गई जी, भुल गई जी। ये तीन भाग है ना जो बाबा नंद सिंह साहिब के बचन हैं। पत्नी पति के आगे, सेवादार मुर्शद के आगे, सिख गुरु के सामने, हैं जी, बच्चे माता पिता के सामने। ये तीन भब्बे जरूर पढ़न। पहला भब्बा भब्बा भुल गई जी या भुल गया जी। दूसरा भब्बा भब्बा भला जी। भला जी का क्या मतलब? अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया ये काम कर, उसी वक्त ये नहीं कहना आप मुझे ही बोलते रहते हो सारे काम, मेरे दूसरे भाई को क्यों नहीं बोलते। होता है ना हमारे घरों में ऐसे। ये नहीं कभी कहना, अपने अंदर ये पॉजिटिविटी रखो। शुक्र है बड़ों की निगाह में मैं हूं, बड़े मुझे काम कह रहे, शुक्र उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ रही है। अगर काम करने का नहीं भी मूड ना, एकदम जवाब ना दो, ये कहो पब्बा भला जी अभी करती हूं या अभी करता हूं, किया चाहे 15 मिनट बाद, मगर एकदम जवाब ना दो। ये 2 मिनट की रखी हुई निम्रता आने वाला कितना बड़ा विपता का समा टाल सकती है। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। जुबान से कहना ना भुल गई या भुल गया, जुबान से कहना ना भला जी, जुबान से बोलना है ना। 2 तेरे मीठे बोले हुए बोल घर में जो दोफाड़ का समा आना है ना, उसको टाल सकते हैं। ये मेरी विनती है, विनती। कौन सी बात कहां करनी, कैसे करनी, किस वक्त करनी, अगर ये तरीका आ जावे ना, जिसको ऐसा ढंग आ गया, ऐसा जिंदगी में चलने का सलीका आ गया, उसका जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। 2 पब्बे सुन ले। तीसरा होता है पब्बा भाणा जी। भाणा होता है मानने के साथ। वो 2 पब्बे ही अपने जीवन दे विच ले आओ, तीसरा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा। हेप सिंह जी। फिर आखो धन बाबा। हेप सिंह जी। अगली बात ये भी जीवन में बड़ी काम आएगी, सुनियो। जो दूसरों को इज्जत देता है ना, इज्जत दिया करो। बच्चे जितने बैठे अपने माता पिता की इज्जत किया करो, जितनी कर सकते हो करो, करो इज्जत। जितना उनका वचन संभाल सकते हो ना संभालो, रिस्पेक्ट दो। और माता पिता को भी बेनती, बच्चों के साथ पूरा प्यार भी रखो, उनकी भी इज्जत करो। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर, ये नहीं कि 10 बंदों में कहना ये तो पढ़ता ही नहीं, फलाने का बच्चा तो बड़ा अच्छे नंबर लेके पास होता है, मेरा तो नलायक है। आखो वाहिगुरु जी। कभी भी बच्चों की ऐसी बात दूसरों के सामने नहीं करनी, फिर बच्चों को फील होता है, वो अपने हृदय में पक्का लिख लेते हैं, उनकी आत्मा भी दुखती है। दोनों तरफ से ये काम चाहिए। बच्चे भी माता पिता की रिस्पेक्ट करें और माता पिता भी बच्चों की इज्जत करें। ये मेरी विनती है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असलियत में वो इज्जतदार है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, जो दूसरों को इज्जत देता है, असलियत में वो इज्जतदार है, क्योंकि बंदा दूसरों को वही देता है जो उसके पास मौजूद होवे। अगर कोई दूसरों की बेइज्जती करता है ना, समझ लेना अपने अंदर ही, कहना नहीं कुछ, समझ लेना ये इज्जतदार बंदा नहीं। बस ये तो जगह जगह पे ऐसे गालियां निकालता है या जगह जगह पे दूसरे की निंदा करता है, ये इज्जतदार बंदा नहीं। जो आपके सामने किसी की बात कर रहा है, वो आपकी बात भी किसी के सामने जाके जरूर करता है जी। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। इज्जत जो देता है ना दूसरों को, असलियत में वो इज्जतदार है, इज्जतदार। क्योंकि बंदे के पास जो है उसने तो वही देना है। सच्ची बात है ना, जो बंदे के पास है उसने तो वही देना है, वही। दुनियावी तौर पे कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, मनियारी वाला मनियारी बेचता है, ऐसा ही होता है ना। फ्रूट वाला फ्रूट बेचता है। और सच्ची बात, जिसके अंदर नफरत है, अगर स्टेज पे भी बैठ जाएगा वो नफरत ही फैलाएगा। और जिसके अंदर प्रेमा भक्ति है,
जब वो स्टेज पे भी बैठेगा उसका यत्न यही होगा, कौन सा ढंग अपनाऊं, इतनी संगत आई इनके अंदर भी गुरु के प्रति प्रेमा भक्ति जन्म ले लवे। आखो वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी, धन बाबा। सिंह। अगली बात सुनो, फिर शब्द पढ़ेंगे। और ये बड़ी काम आ रही बातें, जिधर भी मैं जाता हूं ना, बच्चे, नौजवान, न्यू जनरेशन मुझे भाग भाग के मिलते, जी हम आपके परिवारक मेंबर हैं। मुझे इतनी खुशी होती। शुक्र है दातिया, जो 3 से 4 दोपहर को प्रोग्राम लगता है, रात को 10 से 11। अगर आप नहीं देखते, देखा करो पीटीसी सिमरन पे। और मेरी बेनती, जिनके इलाके में ये चैनल नहीं आता, केबल ऑपरेटर को बोलो, अगर फिर भी कोई मजबूरी, मोबाइल पे डाउनलोड कर लो हमारा चैनल, भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल। 3 से 4 दोपहर और रात 10 से 11 कीर्तन सुनने की रूटीन ना कभी छोड़ना। गुरु की मेहर इतनी ज्यादा आ जाएगी आपके अंदर, ये दिमाग जो है ना, इतनी गुरु कृपा कर देगा, इतनी मेहर कर देगा, जो हर वक्त मन डिगू डिगू करता है ना, परेशान होता है, गिरता ही रहता है, ये मन को सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी गुरु के शब्द की। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी, धन बाबा। सिंह। ये बात सुनो, फिर शब्द पढ़ेंगे। साझेदारी करो किसी के दर्द की। अगर साझेदारी करनी ना, सांझ करनी है, बांटना ही है, तो किसी का दर्द बांटो। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत आ जाते हैं। सच्ची बात है ना, खुशियां आती है ना, बंदे का नाम चमकना शुरू होता है, पैसा आना शुरू होता है, कितने मुंह बोले बाप बन जाते, कितनी मुंह बोली माएं बन जाती, कितने मुंह बोले भाई बन जाते, बहनें बन जाती। खुशी के साझेदार तो बहुत हैं। अगर बांटना है, साझेदारी करनी, तो किसी के दर्द की करो, दर्द की। अगर तू किसी के दर्द को बांटेगा ना, गुरु तुझे कभी भी दर्द नहीं होने देगा। खो वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी, धन बाबा। सिंह। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार न फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो मैंने शब्द पढ़ना है, भगत नामदेव जी का उच्चारण किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी के 727 नंबर अंग के ऊपर दर्ज, मैं अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। कल एक प्रकरण मैंने आरंभ किया था, उसको आगे बढ़ाने का यत्न करेंगे, गुरु सेवा लवे। अब इधर बैठने की जगह नहीं है, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, गोडा उठाओ और संगत को बिठाओ। इधर हॉल में भी बैठने का प्रबंध किया है, प्रोजेक्टर भी लगा है और बिछाई भी हुई, साउंड भी चल रही है अंदर। संगत जो बाद में आ रही वो पीछे इधर बैठते जाएंगे गुरु की मेहर से। आओ बड़े प्यार के साथ सारे कृपा करो। भगत नामदेव जी का उच्चारण किया ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 727 नंबर अंग के ऊपर दर्ज। अंग, अंक नहीं, पन्ना नहीं, अंग। जैसे हमारे अंग, गुरु ग्रंथ साहिब के भी अंग हैं। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, ये अंग हैं गुरु पिता के। करो प्यार ना सारे कृपा जी। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। सारी संगत आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। खुंदकारा मतलब सहारा। महाराज मेरे पातशाह साईं तेरा नाम, मैं अंधा बंदा हूं, अंधा मन रूपी आंखों से मैं अंधा हूं। अंधे की लाठी है तेरा नाम, तेरा नाम मेरा सहारा है। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो धन बाबा। और मैं कंगाल हूं, आजिज हूं, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं है जी, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं। तेरा नाम ही मेरा सहारा है, आसरा है। बड़े प्रेम के साथ ये शब्द मेरे साथ साथ पढ़ो।
कोई रसना खाली ना रहे जी। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। पढ़ो। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। तन गुरु रामदास जी, जी तन गुरु रामदास जी, मेरे बाबा दीप सिंह जी, बाबा सारे बोलो, मेरे बाबा दीप सिंह जी, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी, करीमा रहीमा अल्लाह तो गनी, हाज़िरा हज़ूर दर पेश तो मने। करीम का मतलब बख्शिश करने वाले। बख्शिश करने वाला कौन? निरंकार। निरंकार कौन? मेरा गुरु नानक गुरु रामदास। आखो वाहिगुरु जी। ये बख्शिश करने वाले रहीम निरंकार दातिया, तू अमीर है, तू बख्शिश देने वाला है। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर। और जहां बख्शिश करने वाला, वहां हर वक्त मेरे हाजिर नाजर रहने वाला भी तू ही है। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। हर जगह पे व्यापक है तू, हर जगह पे तू बस रहा है, हर जगह पे कण कण में, पत्ते पत्ते में तू बस रहा है। अगर तू मेरे साथ है, अंग संग है, हाजिर हजूर है, कण कण में तू बस रहा है, तो मुझे किस बात की मोक्षंदगी है जी? फिर मुझे किस बात की मोहताजी?
अगर तू हर जगह बस रहा तो मुझे भी किसी बात की मौशंदगी नहीं। जां तू मेरे हल है तां क्या रोशंदा तुद सब किश मैनू जां तेरा बंदा। कैसे कह रहे भगत जी, पढ़ियो। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजिरा हजूर दर पेश तू मनी। पढ़ो पढ़ो सारे। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजिरा हजूर दर पेश तू मनी। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंद कारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। पढ़ो। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंद कारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। तन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, जी बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह पढ़ो सारे। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंद कारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। सारे। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी, दरियाओं तो दहंद तो बिसियार तो तनी, देह लेह एक तो दिगर तो नहीं। पानी अंदर ना बंटो, इनको मना करो, बाहर ले जाओ बाहर। दरियाओं तो देहंद तो बिसियार तो तनी, देह लेह एक तो दिगर को नहीं। देखो भगत नामदेव जी निरंकार को बोल रहे, हमने गुरु रामदास को गुरु नानक को बोलना है। महाराज आप दरिया हैं, दरिया समुंदर हैं बख्शिशों का। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी, दरियाओं तो दहिंद मतलब दाता देने वाला भी तू। हमें और कोई दाता नहीं चाहिए। गोरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, वो एक दाता कौन कह दो? धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, बख्शिशें करने वाला भी तू, सबको दातें देने वाला भी तू। और तू गरीब नहीं, तू बड़ा अमीर धनवान है। तेरे पास नाम का अतुट खजाना,
अनमोल खजाना, अमुक खजाना है। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। और जिसके ऊपर भी तू निगाह डाल देवे ना, उसको भी नाम धन से अमीर बना देता है जी। सच्ची बात है ना। तू बख्शिशों का दरिया है, दाता देने वाला दाता है, और बहुत तू धनवान। और महाराज जीवों को पदार्थ देता भी तू है। अगर बुलावा आ जावे, बुलाने वाला भी तू है। और कोई भी ऐसा नहीं जो इतनी पावर रखता हो। आ भी तेरे हुक्म से सारे रहे हैं, जा भी तेरे हुक्म से रहे हैं। किसी को धन मिल रहा है तेरे हुक्म से मिल रहा है। अगर कोई आज गरीब है वो भी तेरे हुक्म में ही है जी। अगर कोई गुणों करके अमीर है ना, वो भी तेरे हुक्म में। अगर गुणों करके भी कोई निर्धन है, वो भी तेरे हुक्म में है। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। कैसे कह रहे भगत जी, पढ़े हो। दरियाओं तो देहंद तो बिसियार तो तनी, देह ले एक तो दिगर को नहीं। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लाखो धन बाबा दीप सिंह जी। दरियाओं तो देहंद तो बिसियार तो तनी, देह लेह एक तो दिगर को नहीं। पढ़ो। मैं अंध लेके टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। सारे अंध लेके टेक तेरा नाम खुंदकारा, रामदास। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। जी धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। जी बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। लिया करो जितना नाम ले सकते। आखो धन बाबा दीप सिंह जी। तू दाना तू बीना, मैं विचार क्या करी। ना मेचे स्वामी बख्शंद तो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी, आप जੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਆਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਔਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਰ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਚੌਂਕ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ, ਰਾਤੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਆ ਜਿਆ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਬੀਹੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੈ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲੀਆ ਕੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 40 ਦਿਨ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਆ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। 25,000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ 2500 ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ।
पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ भी दिओ, एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो और इस भूमि दान दे विच वड्डे दान दे विच, क्योंकि ये वड्डा दान हुंदा भूमि दान, इस भूमि दान वड्डे दान दे विच अपना वध तों वध सहयोग भी दिओ। पूरी अकाउंट डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है, आप जी स्क्रीन शॉट लै लो और अपनी सेवा इन्हां अकाउंटां दे विच आप जी पा सकदे हो। और सेवा पाउण तो बाद आप जी सानू हेठां दित्ते नंबरां दे उत्ते जो अपना मैसेज कर देना तां जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक भेजिया जा सके। अपनी सेवा तुसीं सानू गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी कर सकते हो। 98 150 99 513 नंबर ते 98150 89513 इस नंबर ते आप जी अपनी सेवा सानू तुसीं फोन पे, गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हो। फिर मैं बेनती करदा भुल्लिओ ना 20 जुलाई तक पूरा जोर ला दिओ, जिन्ना जोर ला सकते हो, तां जो 113 यूनिट मैं कहना ये डबल ट्रिपल कम हो जाए। और होएगा उदों ही जदों तुसीं मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ दिओगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दे, बाबा दीप सिंह जी दे सारे परिवारक मैंबरां नूं, संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं जो तुसीं रोज़ाना जुड़दे हो, दोपहरी 3 ਤੋਂ 4 भी और राती 10 ਤੋਂ 11 भी PTC सिमरन के माध्यम राहीं मैं सारे परिवारक मैंबरां नूं बेनती करांगा जो सेवावां दे कारज बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वालों चल रहे हैं, सब नूं पता है किवें दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा, दोवें तरह की पढ़ाई, बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है, पिता जी की मेहर नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई, गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई चल रही, बाबा दीप सिंह जी फ्री टिफन सेवा जिहदे राहीं बजुर्गों नूं जो प्रशादा 2 वेले का उन्हां दे घरां दे विच पैक करके टिफन दे विच पहुँचाया जाता है। इस तो इलावा बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी विधवा बीबियां नूं फ्री राशन देने की सेवा बेअंत कार्य चल रहे। नवीं जगह की उसारी चल रही जिथे जी दया प्रवान पार्क बनना है, पंछियों नूं दाणा पाउण लई, खाना पाउण लई, बीमार पंछियों के इलाज का हस्पताल भी और सरां भी, गुरुद्वारा साहिब की उसारी। तीसरा यूनिट जिहड़ा बटाला रोड के उत्ते उत्थे भी उसारी, जिथे स्कूल और हस्पताल बनना उत्थे भी उसारी के कार्य शुरू हो चुके हैं। मैं जिहड़ी तुहानूं बेनती करन लगा कि कई साडे इहो जे प्रेमी ने जिहड़े कहंदे जी सानूं पंथ दे नाल बड़ा ही दर्द है, जिहड़े पंथ प्रति दर्द रखते हो ना, मेरी तुहाडे चरणां 'च बेनती, जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे इलाके 'च भी इदां सेवावां दे कारज शुरू होण, तुहाडे कोल कोई जगह है, भावें 100 गज जगह है, 200 गज जगह है, 500 गज जगह है, वड्डी जगह है, आप जी ट्रस्ट नूं वो जगह गुरु साहिब जी की किरपा दे नाल ट्रस्ट के नाम तुसीं करवाउणी है ते उस जगह के उत्ते सेवावां दे कारज शुरू करना फिर ट्रस्ट की जिम्मेवारी बन जाएगी। जिन्नी जगह होएगी उस मुताबक सेवावां शुरू हो जाएगियां। छोटी जगह होएगी उत्थे गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल सकती है, कीर्तन सिखलाई चल सकती है, होर कई कारज इदां दे चल सकते हैं, कंप्यूटर सिखलाई चल सकती गरीब बच्चियां दी। वड्डी जगह होएगी उत्थे स्कूल हस्पताल भी बन सकता है। ये हुण तुसीं वेखना कल्ले गल्लां दे नाल असीं पंथ दर्दी ना बणीए। तुहाडे कोल कोई भी जमीन है, आप जी ने ट्रस्ट दे नाम करवाउणी और फिर अगों तुहाडे ट्रस्ट की ड्यूटी है उत्थे ये सेवावां दे कारज शुरू करन दी, क्योंकि इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ गुरुद्वारा साहब बहुत ने और बनने भी चाहिए ने। आलीशान गुरुद्वारे बनने चाहिए ने, आलीशान जिथे संगतां बैठन गुरु की गोद दे विच कथा कहानियां सुनन करन। तुहाडा दिल ये नहीं करदा नाल नाल जिथे गुरुद्वारा साहब बने उत्थे इहो जिहा स्कूल भी खुले जिथे बच्चे गुरमत की सिक्ख्या लैण, दुनियावी सिक्ख्या लैण और ये सिक्ख्या लैण तो बाद घर घर दे विच ही गुरु घर बना देण। ये मेरी बेनती है भाई, जे तुहाडा सचमुच दिल करदा है ना कि तुहाडे पिंड विचों तुहाडे शहर विचों नशियां दा कोड़ मिट जावे, बच्चे गुरमत नाल भी जुड़न और दुनियावी पढ़ाई नाल, क्योंकि ये महापुरखां दा बचन है। तुसीं किसे नूं एक वेले लंगर छका दिओगे ना, ਉਹਦਾ पेट भरेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਈਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
इस नंबर के उत्ते तुसी संपर्क कर लेना। जे तुहाडे कोल कोई जगह पई है, आप जी इस नंबर के उत्ते संपर्क करियो, साडी टीम जाएगी, वो जगह देखेगी, तो उस तो बाद फिर उत्थे सेवावां दे कार्य सारे शुरू हो जाएंगे। बस भुल्लिओ ना, वो जमीन तुसी ट्रस्ट के नाम कराउणी है, उस तो बाद फिर ट्रस्ट की सारी जिम्मेवारी बन जाएगी। इस मैसेज नूं वध तों वध शेयर करियो तां जो साडा सोहना पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, पढ़िया लिखिया पंजाब, उहदी सिरजना हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।